آپ کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس کار پر کوئی حق نہیں ہے، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں، دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہر سینٹینس میں کوئی حق نہیں ہے، کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو نو رائٹ آن۔ ہیو نو رائٹ آن مین کوئی حق نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیو نو رائٹ آن پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ادم ورڈز، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ آپ کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ آن دس ہاؤس۔ یو ہیو نو رائٹ آن دس ہاؤس، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ آئی ہیو نو رائٹ آن ہیم۔ آئی ہیو نو رائٹ آن ہیم، تمہارا اس کار پر کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ آن دس کار۔ یو ہیو نو رائٹ آن دس کار، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ آن می۔ یو ہیو نو رائٹ آن می۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہارا اس موبائل پر کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا لالچ اچھا نہیں ہے، اتنی بے وقوفی اچھی نہیں ہے، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے، اتنا غرور اچھا نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے، یعنی ہر سینٹینس میں اچھا نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ گڈ۔ نوٹ گڈ مین اچھا نہیں یا اچھی نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سو مچ پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ گڈ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اتنا لالچ اچھا نہیں ہے۔ سو مچ گریڈ از نوٹ گڈ۔ سو مچ گریڈ از نوٹ گڈ، اتنی بے وقوفی اچھی نہیں ہے۔ سو مچ فولشنیس از نوٹ گڈ۔ سو مچ فولشنیس از نوٹ گڈ، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ سو مچ اینگر از نوٹ گڈ۔ سو مچ اینگر از نوٹ گڈ، اتنا غرور اچھا نہیں ہے۔ سو مچ arrogance is not good۔ سو مچ arrogance is not good۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اتنی چالاکی اچھی نہیں ہے۔ اتنی چالاکی اچھی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی لاہور دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ گیم کھیلا ہے؟ کیا تم کبھی امریکہ گئے ہو؟ کیا تم کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے؟ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا تم نے کبھی، یعنی ہر سینٹینس میں کیا تم نے کبھی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو یو ایور۔ ہیو یو ایور مین کیا تم نے کبھی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ہیو یو ایور، یو یہ سبجیکٹ ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک۔ کیا تم نے کبھی لاہور دیکھا ہے؟ ہیو یو ایور سین لاہور۔ ہیو یو ایور سین لاہور، کیا تم نے کبھی یہ گیم کھیلا ہے؟ ہیو یو ایور پلیڈ دس گیم۔ ہیو یو ایور پلیڈ دس گیم، کیا تم کبھی امریکہ گئے ہو؟ ہیو یو ایور بین ٹو امریکہ۔ ہیو یو ایور بین ٹو امریکہ، کیا تم کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو؟ ہیو یو ایور بورڈڈ اے پلین۔ ہیو یو ایور بورڈڈ اے پلین۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا تم کبھی اس سے ملے ہو؟ لکھ کر لے لو، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ لکھ کر لے لو، یہ لڑکا کام نہیں کرے گا۔
لکھ کر لے لو غریب غریب نہیں رہے گا، لکھ کر لے لو وہ جیتے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں، دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لکھ کر لے لو، یعنی ہر سینٹینس میں لکھ کر لے لو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مارک مائی ورڈز۔ مارک مائی ورڈز مین لکھ کر لے لو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین مارک مائی ورڈز پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور مارک مائی ورڈز یہ ہمارا اسٹرکچر ہے دیٹ مین لکھ کر لے لو۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس جملے آسانی سے انگریزی زبان میں دیٹ کین بی ریئلی ہیلپفل فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ لکھ کر لے لو وہ یہاں نہیں آئے گا۔ Mark my words he will not come here. Mark my words he will not come here. لکھ کر لے لو یہ لڑکا کم نہیں کرے گا۔ Mark my words this boy will do nothing. Mark my words this boy will do nothing. لکھ کر لے لو غریب غریب نہیں رہے گا۔ Mark my words poor will not remain poor. Mark my words poor will not remain poor. لکھ کر لے لو وہ جیتے گا۔ Mark my words he will win. Mark my words he will win. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ لکھ کر لے لو وہ وہاں نہیں جائے گا۔ کان کھول کر سن لو وہاں مت جاؤ۔ کان کھول کر سن لو شور مت کرو۔ کان کھول کر سن لو اسے مت بتانا۔ کان کھول کر سن لو دیکھنا مت یہاں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کان کھول کر سن لو، یعنی ہر سینٹینس میں کان کھول کر سن لو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیسن اپ۔ لیسن اپ مین کان کھول کر سن لو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین لیسن اپ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور لیسن اپ مین کان کھول کر سن لو۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپفل فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ کان کھول کر سن لو وہاں مت جاؤ۔ Listen up, don't go there. Listen up, don't go there. کان کھول کر سن لو شور مت کرو۔ Listen up, don't make noise. Listen up, don't make noise. کان کھول کر سن لو اسے مت بتانا۔ Listen up, don't tell him. Listen up, don't tell him. کان کھول کر سن لو دیکھنا مت یہاں۔ Listen up, don't be seen here. Listen up, don't be seen here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کان کھول کر سن لو جلدی گھر آنا۔ کان کھول کر سن لو جلدی گھر آنا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks for watching. وہ ایک ڈاکٹر سے کم نہیں ہے۔ تم کسی مصیبت سے کم نہیں ہو۔ تم میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہو۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سے کم نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں سے کم نہیں کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یہ فارمولا nothing less than. Nothing less than mean سے کم نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस नथिंग लेस देन, ये हमारा फार्मूला यानी स्ट्रक्चर है, दैट मीन से कम नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वो एक डॉक्टर से कम नहीं है, यानी वो एक डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। ही इज नथिंग लेस देन अ डॉक्टर, ही इज नथिंग लेस देन अ डॉक्टर। तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो, यू आर नथिंग लेस देन अ ट्रबल, यू आर नथिंग लेस देन अ ट्रबल। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो, यू आर नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग टू मी, यू आर नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग टू मी। उसका घर किसी महल से कम नहीं है, हिज हाउस इज नथिंग लेस देन अ पैलेस, हिज हाउस इज नथिंग लेस देन अ पैलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये किसी मोजज़े से कम नहीं है, ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है, यानी हर सेंटेंस में जरूरत नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नीडलेस। नीडलेस मीन जरूरत नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नीडलेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नीडलेस ये हमारा फार्मूला है, दैट मीन जरूरत नहीं है। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड। बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो, नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो। पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। नीडलेस टू आस्क, यू कैन गो, नीडलेस टू आस्क, यू कैन गो। कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क, नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है, यानी हर सेंटेंस में जरूरत नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नीडलेस। नीडलेस मीन जरूरत नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नीडलेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कामा
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नीडलेस ये हमारा फार्मूला है, दैट मीन ज़रूरत नहीं है। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड। नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो। नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो। पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। नीडलेस टू आस्क, यू कैन गो। नीडलेस टू आस्क, यू कैन गो। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूँगा। नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क। नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखूँगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो बहाने बना रही है, तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हो? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वो बहाने बना रही है, शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। आई डिड नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेज। आई डिड नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्त होते किस लिए हैं? भाई होते किस लिए हैं? पैसे होते किस लिए हैं? डॉक्टर होते किस लिए हैं? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्त होते किस लिए हैं? दोस्त होते किस लिए हैं? What are friends for? What are friends for? भाई होते किस लिए हैं? What are brother for?
What are brothers for? पैसे होते किस लिए है? What is money for? What is money for? Doctors होते किस लिए है? What are doctors for? What are doctors for? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उस्ताद होते किस लिए है? उस्ताद होते किस लिए हैं? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। खेलने से याद आया वो आज नहीं आएगा। चाय से याद आया आज मेरा रोजा है। सोने से याद आया आज मुझे जल्दी उठना है। पढ़ने से याद आया मुझे अंग्रेजी सीखनी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से याद आया, यानी हर सेंटेंस में से याद आया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ मीन से याद आया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। स्पीकिंग ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और स्पीकिंग ऑफ ये हमारा स्ट्रक्चर है दैट मीन से याद आया। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खेलने से याद आया वो आज नहीं आएगा। स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग ही विल नॉट कम टुडे। स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग ही विल नॉट कम टुडे। चाय से याद आया आज मेरा रोजा है। स्पीकिंग ऑफ टी टुडे इज माई फास्ट। स्पीकिंग ऑफ टी टुडे इज माई फास्ट। सोने से याद आया आज मुझे जल्दी उठना है। स्पीकिंग ऑफ स्लीपिंग आई हैव टू गेट अप अर्ली टुडे। स्पीकिंग ऑफ स्लीपिंग आई हैव टू गेट अप अर्ली टुडे। पढ़ने से याद आया मुझे अंग्रेजी सीखनी है। स्पीकिंग ऑफ रीडिंग आई हैव टू लर्न इंग्लिश। स्पीकिंग ऑफ रीडिंग आई हैव टू लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। खाने से याद आया आज तुम चावल खाओगे। खाने से याद आया आज तुम चावल खाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। She greets us in every other day.
She treats us in every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है. I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ. I water the plants every other day. I water the plants every other day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो हर दूसरे दिन नहाता है. वो हर दूसरे दिन नहाता है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तुमने मुझे गलत समझा. उसने तुम्हें गलत समझा. मैंने तुम्हें गलत समझा. मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलत समझा, यानी हर सेंटेंस में गलत समझा कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉट रॉन्ग. Got wrong mean गलत समझा. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस got प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस रॉन्ग. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तुमने मुझे गलत समझा. यू गॉट मी रॉन्ग. यू गॉट मी रॉन्ग बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. उसने तुम्हें गलत समझा. ही गॉट यू रॉन्ग. ही गॉट यू रॉन्ग. मैंने तुम्हें गलत समझा. आई गॉट यू रॉन्ग. आई गॉट यू रॉन्ग. मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा. माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग. माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. आपने हमें गलत समझा. आपने हमें गलत समझा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैम. ये सरासर नाइंसाफ़ी है. ये सरासर बदतमीज़ी है. ये खबर सरासर अफवाह है. ये सरासर गलत है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, यानी हर सेंटेंस में सरासर कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन आउट एंड आउट. इन आउट एंड आउट मीन सरासर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस इन आउट एंड आउट. ये फार्मूला है दैट मीन सरासर प्लस अदर वर्ड्स. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना. ये सरासर नाइंसाफ़ी है. दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस. दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस. बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. ये सरासर बदतमीजी है. दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस. दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस. ये खबर सरासर अफवाह है. दिस न्यूज़ इज इन आउट एंड आउट रमा. दिस न्यूज़ इज इन आउट एंड आउट रमा. यह सरासर गलत है. दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग. दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए
کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ سراسر ظلم ہے. یہ سراسر ظلم ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس فار جوائننگ می.